Okay, students, in today's class, our topic will be CV writing or resume. Basically, this is something very important and it will keep on helping you throughout your life. But right now, in your paper, you will be attempting a question when you will be asked to write down a resume for a job. But right now, in today's lecture, we will be discussing what CV is, what resume is, what is the difference between these two terms which are utilized, and why these documents are used, and how the stuff is adjusted while you are attempting this question or you are using this written document in your normal life. First of all, the very first thing which we are supposed to get information about, that is curriculum vitae. CV is the short form. Curriculum vitae or CV means course of life in Latin. A curriculum vitae is a brief summary of the basic information of potential job applicant, which includes contact information, education, work history, and achievement. But what I say, if you are taking your CV just like a resume, CV is the document which is your profile, which is supposed to be updated. For example, right now, whatever your qualification is, whatever degrees you have done, you will keep it update. So that is what CV, this is your personal record. But when you talk about resume, that is something else, because that keeps on changing with the nature of jobs. That is basically used when you are applying for some particular job. Now, move forward. Difference between resume and CV, curriculum vitae. Resume. A resume is typically a concise 1 to 2 page summary of your work experience, skills, and education tailored to specific job applications. Now, it's quite clear. When you talk about resume, it's a shorter form. Whatever you are writing in CV, the same is being written in your resume. But when you are applying for some particular job, that moment you are writing a resume. Why? Because this is a shortened version of your CV, and the most focused aim of your resume is just for some particular job. And when you are applying for some job, so you adjust your CV according to that particular job. What they are asking, what are their prerequisites, what are the demands, what are the things which are needed for that particular job for which you are applying. So you adjust your resume. Okay, but whereas CV is concerned, in contrast, a CV is a more comprehensive document that details your entire academic and professional history, often used for academic research or medical positions, or can be multiple pages long. If you talk about the stuff, you are mentioning the stuff in both the documents. Difference number one is, this is a shorter version, that is a lengthier version. Here you are focusing on the job for which you are applying, but here you are keeping yourself update. You would like to show somebody that how updated your education is, up to date, up to till date. Now this is my profile. You can judge what I am right now, whatever I have, this is just like that. But whereas resume is concerned, that changes with the nature of jobs. When you are applying for some particular job, you are writing a resume and you are changing it, you are including, you are excluding things again. Next. Okay. Now a bit elaboration, थोड़ा सा elaborate किया. अब बात करते हैं resume versus CV. Resume. A resume is a concise document that summarizes job applicants' educational background, work experience, and special skills. Whereas CV is concerned, CV is a detailed document highlighting a person's professional and academic history. यहाँ पर अगर आप बात करें तो दोनों बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेल्ड है और ये कंसाइज है. ठीक है. Provides a concise overview of skills and qualifications for a specific position. अगर मेरी CV में बहुत कुछ मैंने कर रखा है, मैंने बहुत सी डिग्री कर रखी है, लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे उस डिग्री और उन स्किल्स का इंतखाब करना पड़ेगा जो उस जॉब से रिलेटेड है, उसको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा. लेकिन जब आप यहाँ की बात करते हैं, प्रोवाइड्स फुल हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स, क्या है
यहां पर आप किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं करते सीवी में, आप शुरू से लेकर आज तक जो कुछ आपका एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा आप उसको अपडेट करते, ये मेरी प्रोफाइल है। लेकिन साबित ये हुआ कि जो आपकी सीवी है वो डिटेल्ड है, वो कई पेजेस पे जा सकती है, लेकिन आप जब बात करते हैं रिज्यूमे की, ये शॉर्टेंड वर्जन है और इसमें आप जॉब की मुताबिकत से चीजों को इंक्लूड करते हैं। आगे हैज 1 or 2 पेजेस। कोशिश ये करते हैं कि जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमेशा ये कहा जाता है कि इट शुड नॉट बी लेंथी, इसको लेंथी ना बनाए, क्योंकि आपकी रिज्यूमे अगर बहुत ज्यादा लेंथी होगी तो आपको बात करने का मौका बड़ा कम मिलेगा, और उसमें इस चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो आप इंटरव्यू कर रहा हो वो आपको बहुत सी चीजों के अंदर घेर सकता है। तो अपनी सीवी बेसिकली तो यहां है, रिज्यूमे की जब मैं बात करता हूं, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी टर्स, इट शुड बी रेलेवेंट, एंड यू मे हैव सर्टेन चांसेस टू टॉक ऑन सम थिंग्स। अच्छा, यहां पे क्या है, हैज मल्टीपल पेजेस, क्योंकि ये डिटेल्ड है तो आप इसमें डिटेल में बात करते हैं। मेनली यूज्ड टू अप्लाई फॉर जॉब्स, इसका जो मेन फोकस है वो जॉब्स है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो तब लिखते हैं, लेकिन इसका मेन फोकस क्या है, यूज फॉर एकेडमिक पर्पसेस। एकेडमिक पर्पसेस के लिए क्या है कि आप अब तक कहां तक पढ़ चुके हैं अपनी सीवी दें, और उसके हिसाब से मजीद अपडेट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये दिखाएंगे कि अब तक की एजुकेशन ये है, आइंदा के लिए अगर मैंने कोई डिग्री करनी है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी सीवी को रखते हैं। तो डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ कि दिस इज अ शॉर्टर वर्जन एंड दैट इज a lengthier version. It contains the complete details, but it contains the details according to the job for which you are applying. और आपके एग्जाम के अंदर जो चीज आएगी वो आएगी रिज्यूमे, और कोई पर्टिकुलर जॉब का कोई कटिंग उन्होंने लगाई होगी और वो आपको बताएंगे कि अभी अगर आपने पढ़ी है तो इसके हिसाब से एक रिज्यूमे आप बनाकर दिखा दीजिए। आगे चलिएगा। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्टैंडर्ड रिज्यूम। The standard requirements of resume for all job requirements must include the following. इसमें ये चीजों का होना लाजमी है। एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ सीवी और रिज्यूमे राइटिंग। सीवी हो गई या रिज्यूमे, इसके लिखने के कई पैटर्न्स, इस पे कोई ये बात नहीं की जा सकती कि कोई इसका एक फिक्स पैटर्न है, नहीं, मुख्तलिफ तरीकों से रिज्यूमे को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, डिटेल्स को इंसर्ट किया जाता है। लेकिन उनमें से चंद एक में से एक मैं आपको बता दूंगा कि आपने किन किन चीजों को कैसे लेकर चलना होगा। सबसे पहली चीज है पर्सनल एंड कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन। पहली बात ये होती है कि रिज्यूमे के शुरू में बाज लोग रिज्यूमे लिखते हैं, बाज लोग क्या लिखते हैं, अपना नाम लिख देते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक हो गया। उस इंफॉर्मेशन के एक ब्लॉक के अंदर आप अपना नंबर, आप अपना ईमेल एड्रेस, आप अपना होम एड्रेस, और इसके बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पर कॉर्नर पर आप क्या करते हैं, अपनी एक तस्वीर, और वो रिज्यूमे में इस चीज को कहते हैं फ्रेश फोटोग्राफ, जो अब की तस्वीर है वो इंसर्ट करें। तो पहली चीज तो ये। दूसरी, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस, आगे बताएंगे कि इसमें करना क्या क्या है। वर्क हिस्ट्री और एक्सपीरियंस, रेलेवेंट स्किल्स फॉर द जॉब इन क्वेश्चन, ऑन इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स और हॉबीज, सम रेफरेंसेस। अभी क्या चीजें हैं, अगर हम एक पेज के ऊपर रखकर इसके ऊपर बात करें तो यहीं पर डिटेल्स दी जा सकती है, मैं इसी को एक एक करके डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन आप कहते नहीं सर अगर आप अलग डिटेल में समझाते जाए तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, तेज से चलता हूं। अच्छा, सबसे पहले what are the critical elements for a job that must be captured in the resume? कह रहा है the applicant must clearly understand the job description। पहले आप जॉब को समझे कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। दूसरी बात, the CV or the resume must be tailored to match the role of the incumbent job। देखिए मैंने यहाँ पे CV का लफ्ज जब यूज करूंगा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, रिज्यूमे ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी बात, a new CV or a new resume must be designed for all new jobs that are applied for। There is no generic CV। कोई आप जो लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल CV लिखते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप तरतीबवार चीजों को डाला जाता है। इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन आप जो लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब सबसे पहले, हाउ शुड आई फ्रेम द स्किल सेक्शन ऑफ माय रिज्यूमे। देखिए मैंने वहां तो तरतीब से लिखा, लेकिन यहां पर सबसे पहले स्किल्स का बता दिया कि भाई मेरी स्किल्स क्या है, लेकिन आनी सबसे पहले क्या चीज चाहिए, यू आर सपोज टू प्लेस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वो आएगी। अच्छा, अंडर द स्किल सेक्शन यू शुड मेंशन द स्किल्स दैट, वो स्किल्स जो आपकी अदर देन एकेडमिक डिग्री से हट कर है। आपने एफएससी की, बीएससी की, उससे हट के आपकी स्किल्स क्या, आपको कंप्यूटर आती है, आपको लैंग्वेज आते हैं, आपको नेटवर्क आता है, कुछ भी, ये एक्स्ट्रा स्किल्स है जो आप उस सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। आगे चलिएगा। अच्छा, हाउ शुड आई अप्रोच द एक्सपीरियंस एस्पेक्ट ऑफ माय रिज्यूमे। आपकी पूरी रिज्यूमे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, दिस इज द एक्सपीरियंस सेक्शन। हियर इफ यू आर अ न्यू लर्नर और अ न्यू अप्लायर, फ्रेश कैंडिडेट है, तो आप अपने एग्जाम में तो हमेशा लिखते हैं फ्रेश कैंडिडेट,
लेकिन अगर वो आपको अज्यूम करवा रहा है कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, आप कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं और आप कहते हैं मैं अपनी सीवी को ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी, तो आप क्या करते हैं बेटे, उस सीवी के अंदर अपने एक्सपीरियंस XYZ। अच्छा, एक्सपीरियंस लिखने का तरीका क्या होता है? जो सबसे पहले मोस्ट रिसेंट जॉब होती है जिसको आप कर रहे थे, पहले प्रेजेंट जॉब, फिर उससे पहले वाली जॉब जो आपने की, फिर उससे पहले वाली, और अगर आप कहते हैं सर मैंने तो कोई जॉब अगर की नहीं, तो आप उस पर लिखते हैं फ्रेश कैंडिडेट। ठीक हो गया, आगे चलिएगा। नेक्स्ट, हाउ डू आई कैप्चर द इंटरेस्ट सेक्शन ऑफ द सीवी। इंटरेस्ट का मतलब है कि बेटे आपके इंटरेस्ट क्या है, व्हाट आर योर इंटरेस्ट। आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं, आप ड्राइंग पसंद करते हैं, फाइन आर्ट करते हैं, जो भी है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ये बताया कि रिज्यूमे के अंदर, एक्सक्यूज मी, रिज्यूमे के अंदर आपने अपने इंटरेस्ट को मैच करना है उस जॉब के साथ जिसके लिए आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहते हैं आप टीचिंग के लिए अप्लाई करें, तो आपने जरूर बताना होगा जी बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, मुख्तलिफ किस्म की लेटेस्ट किस्म की जो चीजें हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करें, मैं ग्रामर की नई नई बुक्स पढ़ता हूँ या मुख्तलिफ लेक्चर्स को देखता हूँ। ठीक है, आगे कह रहा हाउ इज द रेफरेंस पार्ट डिजाइन। अच्छा, रेफरेंस जो आपके सीवी या रिज्यूमे का सबसे आखिरी पोर्शन होता है, ये उस वक्त लगाया जाता है बेटे, बाज़ औक़ात तो सबसे पहले लोग ये लिखते हैं विल बी फर्निश्ड ऑन आस्किंग, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक फर्म से दूसरी फर्म में अगर जा रहे हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी आपको सामना करना पड़ेगा, उसमें आप क्या करते हैं बच्चों, आप उन तमाम फर्म्स जिसमें आप काम कर चुके हैं, उनके जो बड़े थे या जो आपका इमीडिएट बॉस था, आप उनका नाम, उनका नंबर डाल देते हैं। वो किस लिए कि अगर मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूं तो उस वक्त मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये बंदा इस चीज को मेंशन कर चुका है इस सीवी या रिज्यूमे के अंदर, और हमारी फर्म में जॉब करने के लिए इसने आपका रेफरेंस दिया कि आप इसके साथ 4 साल काम कर चुके हैं या आपकी सुपरविजन में काम किया। दे मे कॉल, और वो कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हाउ ऑफन शुड अ सीवी बी रिटन, आगे चलिएगा। अच्छा, हेडिंग, सबसे पहले ऑलवेज मेक श्योर that your name stands on the heading of your CV। CV से मुराद रिज्यूमे। अगर आप CV का स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे पहले ऊपर जो टाइटल है उस पर डायरेक्ट अपना नाम, एग्जाम में आपको नाम लिखने की इजाजत होती है, नॉट एट ऑल, तो आप क्या लिखते हैं XYZ ABC, स्टार्ट वहां से हुआ, आगे चलिएगा। स्टेप 2, पर्सनल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव। आपकी CV का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जितनी जॉब्स में टोबैको इंडस्ट्री, नेस्ले या बड़ी बड़ी जो फर्म्स है मल्टीनेशनल, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप टीचिंग में भी कहीं जाए, तो सबसे पहले वो आपको पूछते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, with what aim you are here and why did you select our firm, our institution, our department, कि आपने ये फैसला क्यों किया कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आएंगे या हमारी फर्म में आएंगे। तो बेटे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जो आपको नेट से मिलती है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे होती है कि आई वुड लाइक टू वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वेयर आई कैन एक्सप्लोर माय एबिलिटीज एंड आई मे गेट चांसेस टू इंप्रूव माय पर्सनालिटी। ये तो एक है, लेकिन इस जैसी कई स्टेटमेंट्स आपको मिल जाती हैं। आगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर नेम एग्जाम में नहीं लिखते, फादर्स नेम, CNIC नंबर, सेल फोन नंबर, और रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एग्जाम में ये सब तो अज्यूम किया जाता है, लेकिन ये कहां लिखा जाता है भाई, सबसे पहले जब आपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिख ली, इसके नीचे जो सबसे पहली चीज आएगी उसके नीचे आप टाइटल देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो चीज आप सबसे ऊपर लिख चुके होते हैं वो नीचे नहीं आती, तो इसमें 3-4 चीजों को रख ले, नेम, फादर्स नेम, रिलीजन, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन और द पर्सनल रिकॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर रहा हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अज्यूम कर लेते हैं या आप एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और आप किसी फर्म में या किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि वो मैच करते हैं कि हमने जो इश्तिहार में एजुकेशन दी थी कि आपकी एजुकेशन इससे मैच करती है, तो इसका मतलब है कि पहले एजुकेशन वो मेंशन करनी है। ठीक है, एजुकेशन कैसे मेंशन करते हैं, सबसे पहले आपकी जो हायर डिग्री है वहां से शुरू करते हैं, जो लास्ट डिग्री होगी आपने रिवर्स जाना होता है, फर्स्ट से यानी इंक्लाइन से नहीं चलना, आपने डिक्लाइन करना है, यानी आपने असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले आपकी रीसेंट डिग्री, फिर उससे कम यानी मैट्रिकुलेशन सबसे आखिर में आएगी, और अगर आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री हो तो सबसे ऊपर जो आपने की होगी। आगे स्किल्स, वो हम पहले बात कर चुके हैं स्किल्स क्या है, आगे चलिएगा। अच्छा जी, वर्किंग एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री। उसके बाद अगर तो आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस या हिस्ट्री आप अगर देना चाह रहे हैं तो आप 1-2 फॉर्म्स बता सकते हैं कि वर्कड, सर्व्ड एज एन इंग्लिश लेक्चरर इन XYZ कॉलेज, सर्व्ड इन XYZ स्कूल इन XYZ स्कूल। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या लिखते हैं, फ्रेश कैंडिडेट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा होता है कि फ्रेश कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। आगे
वर्किंग एक्सपीरियंस हिस्ट्री, ये मैं पहले बता चुका कि इसको कैसे लेकर चलना है, आगे चलिएगा। अच्छा, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, इसको भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन मेंशन करने से पहले चूंकि आप रिज्यूमे लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन यू आर राइटिंग रिज्यूमे दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू आर सपोज्ड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट फॉर व्हाट जॉब यू आर अप्लाइंग। आप अगर स्पोर्ट्स टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डिग्री आपके पास है, तो बाकी चीजों को आपको बाहर रखना होगा। आप वो एक्सपीरियंस डालेंगे जो इससे रिलेटेड है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो लेक्चररशिप से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस है, वो आप डालेंगे। और हॉबीज और इंटरेस्ट को भी कुछ ऐसा ही शो करना पड़ेगा आपको आगे। अच्छा, रेफरेंस, ये आखिरी सेक्शन है, इसको पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया। दिस इज द सेक्शन वेयर यू आर गोइंग टू गेट द रेफरेंस ऑफ दोस पीपल विद हुम यू हैव वर्कड, जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, और आप उनका हवाला दे सकते हैं। और इसको कंफर्म भी करते हैं लोग कि आपने लिखा है कि आपने 5 से 7 साल किसी फर्म में काम किया है, और उस बंदे को कॉल करके पूछा जा सकता है कि भाई ये बंदा अपनी सीवी लाया और हमारी फर्म में अप्लाई कर रहा है, क्या ये आपके साथ काम कर चुका है? वो कहते हैं यस, तो वो नहीं सर। लेकिन बाज लोग एग्जाम में आप क्या लिखेंगे? एग्जाम में आप लिखेंगे विल बी फर्निश्ड ऑन आस्किंग। ठीक है जी, तो ये था आपका एक सीवी। और जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके पीडीएफ नोट्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ सैंपल टू एक प्रिपेयर्ड सीवी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बल्कि कल एक सीवी रिटन भी प्रिपेयर फॉर्म में लेकर आएंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे, ताकि आपके लिए इसका जो आपका माइंड सेट है, माइंड मैपिंग जो है, वो बहुत आसान हो जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।